We continue with death of a partner, and you are just reading theory for 3 minutes, 3 to 4 minutes. Please read the theory once before we start with the sum. Question number 1. Read the theory. Read theory. छोटा सा थियरी पढ़ना है. जिसका थियरी रीड करके हो गया वो सीधा चैट बॉक्स में डन लिख देगा भाई. कुछ रीजनिंग दिए मैंने स्टार्टिंग में और फिर स्टेप्स भी दिए, सॉल्व करने स्टेप्स. Just read the theory. Then once your theory reading is done, write read. Yeah, done. Please write this so that I come to know that you have completed the theory reading.
थियरी के एंड में जगह है, उधर एक नोट लिखो थियरी के एंड में, प्लीज राइट अ नोट। When full goodwill is raised, when full goodwill is raised, and then written off, and then written off, the right of entry will be in new ratio. The right of entry will be in new ratio. इसके बाद का पॉइंट, when only retiring or deceased partners, when only retiring or deceased partners goodwill share is raised, when only retiring or deceased partner's share of goodwill या goodwill share is raised, then right of entry will be in gain ratio. Then right of entry will be in gain ratio. अगर पूरे फॉर्म का गुडविल रेज हुआ और फिर राइट ऑफ हुआ तो न्यू रेशियो राइट ऑफ के लिए यूज होगा, और अगर सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल रेज हुआ, उसका ही शेयर रेज हुआ, तो राइट ऑफ एंट्री विल बी इन गेन रेशियो। एक और चीज लिखो, है जगह लिखने के लिए, जल्दी बोलो। हाँ सर। एक और चीज लिखो, if new ratio is not given, if new ratio is not given, then old ratio between surviving partners, then old ratio between surviving partners is itself gain ratio. Then old ratio between surviving partner itself is gain ratio. You all are on sum number 1, question 1, page number 84, all of you. Sir, give me 1 minute. Yes, please get the book, get the book. किसी के पास बुक नहीं है तो उसको फर्स्ट पेज का एटलीस्ट पिक्चर भेज दो, किसी के पास बुक नहीं है तो। Question number 1, I am reading. Vilas, Mangal and Guru were partners in business sharing profits and losses in the ratio 2:1:1. That's the old ratio. Their balance sheet as on 31st March 2012. बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, भैया जल्दी बताओ मेरे को, ऐसी क्या चीज? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, राइट। बाकी बैलेंस शीट एकदम सिमिलर टू एडमिशन है। गुरु डाइड ऑन 1 जुलाई, अंडरलाइन करो 1 जुलाई, अरे अंडरलाइन करो 1 जुलाई, और उसके बाजू में लिखो alive for 3 months in this year, alive for 3 months in this year. 1 अप्रैल से लेकर 30 जून वो अलाइव था, 1 जुलाई को मर गया। Land and building was to be revalued to rupees 7,000. RDD was to be treated 200. The drawings of Guru up to the date of death amounted to 1,000. Charge interest on drawings 100. अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था अपने फाइनल अकाउंट्स में, उसके बदले एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बने, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बनेगा, उसमें जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं, पीएनएल सस्पेंस। पीएनएल एडजस्टमेंट तो अपने रिवैल्यूएशन के बदले बनाया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम पीएनएल एडजस्टमेंट। वो लोग तुमको रिवैल्यूएशन हम बनाने भी बोल सकते हो, पीएनएल एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो। जब अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल के डेबिट में जाता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएनएल के क्रेडिट में जाता था। अब पीएनएल तो नहीं बन रहा है, तो पीएनएल के बदले क्या बन रहा है, बोलो जल्दी बोलो। व्हाट इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ पीएनएल, जल्दी बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरे को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले क्या बनाना पड़ता है, क्या अकाउंट यूज हो रहा है उसके बदले, पीएनएल के बदले? टू गिव प्रॉफिट
अप टू द डेट ऑफ डेथ कौन सा अकाउंट यूज होता है? Dummy account. हाँ, what is the name of the account, buddy? What's the name PNL of the suspense account? account. Suspense account. You know the name of the account, then you are not supposed to say dummy account. You have to write the name, PNL suspense account. I do not call you as a ladka, a ladki. I know the name of your, so I'll be calling you by name. So you have to call the name of the account. Let me know the name of the account again, please. Let me know the PNL name. suspense account. PNL Suspense account. PNL Suspense. suspense account. तो जो भी PNL में जाने वाला था वो बदले उसके बदले PNL सस्पेंस में जाएगा. अच्छा, मैंने बोला था PNL सस्पेंस का बैलेंस अपने को बैलेंस शीट में लास्ट में रखना है. PNL सस्पेंस का बैलेंस शीट में रखना है लास्ट में, वो बताऊंगा कैसे रखना है. Goodwill, his share of goodwill should be calculated 3 years purchase of the profits of last 4 years. We will find out goodwill valuation करेंगे, फर्म का गुडविल आएगा, फिर उसका शेयर निकालेंगे, उसका शेयर उसको देंगे और फिर वो राइट ऑफ भी करना है. अगर उसका शेयर राइट ऑफ करना है तो कौन से रेशियो में होगा? पूरा गुडविल राइट ऑफ करना है तो न्यू रेशियो में होगा. उसका शेयर राइट ऑफ करना है कौन से रेशियो में होगा? जल्दी बोलो. सर कह रहे हैं मेरा क्या क्वेश्चन पूछा आपने? नहीं होगा. अगर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल राइट ऑफ करना तो कौन सा रेशियो में होगा वो? अभी नोट दिया भैया, अभी नोट दिया. गेन रेशियो में. विच रेशियो? जल्दी बोलो, मेरे आवाज नहीं आ रहा यार, सॉरी. Gain ratio. Gain ratio, right. You be louder. The deceased partner share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. Underline करो, इसको अंडरलाइन करो, और 7,000 और 5,000 भी अंडरलाइन करो. लास्ट 2 साल का प्रॉफिट ये. चलो मेरे को फर्स्ट स्टेप बोलो, क्या है फर्स्ट स्टेप? बैलेंस शीट ट्रांसफर. अच्छा, बैलेंस शीट ट्रांसफर है. अच्छा, ये एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, क्या है ये? डेथ है. और ये अपन फिलहाल के लिए अभी देखे ना सिर्फ. हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ में करना है. अच्छा, नहीं नहीं नहीं, साथ में करना है, क्योंकि तुमको फर्स्ट 4 स्टेप सेम है, वो देखते रहोगे तो टाइम ज्यादा रहेगा मेरा. आफ्टर गुरुज डेथ, ये साथ में करेंगे अपन यार. ट्रांसफर कर रहा हूं मैं बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. 6,000, 7,000, 3,400. ये ट्रांसफर तुमको नहीं आता है क्या? ट्रांसफर आता है ना. जनरल रिजर्व 1,600 है, 800, 400, 400. मैंने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर किया, और मैंने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया. मेरा थर्ड आइटम जो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है. चैट बॉक्स में लिख दो लाइबिलिटी ट्रांसफर कर. छोड़ के क्या क्रेडिटर्स लिखे? बेटा 5 लाइन छोड़ देना, 5 लाइन छोड़ के क्रेडिटर्स लिख देना. और क्या लिखोगे? लाइबिलिटी ट्रांसफर और या लाइबिलिटी ट्रांसफर, ताकि मेरे को मालूम पड़े. उसी के बाद में जाऊं एसेट पे. और हाँ जी, गुरु का बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,400 है, आपने 34,000 लिखा है. मैंने 34,000 लिखा, 3,400 है. हाँ, 3,400 और इधर आएगा 400, राइट. लाइबिलिटी ट्रांसफर, नाम वाम लिखा क्या? नाम वाम लिखा पहले? ये लिखा 1 जुलाई 2012 आफ्टर गुरुज डेथ. एसेट साइड ट्रांसफर कर रहा हूं मैं. लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 6,000 रुपये। सर आप अंदर क्यों लिख रहे हो? एडजस्टमेंट है। डेटर्स 5,000 रुपया। सर अंदर क्यों लिख रहे हो? एडजस्टमेंट है। स्टॉक, बेटा स्टॉक अंदर लिखूं बाहर लिखूं, जल्दी बताना मेरे को। स्टॉक किधर लिखूं मैं? स्टॉक किधर लिखूं? अंदर लिखूं बाहर लिखूं? बाहर। बाहर लिखूं। बाहर लिखा, कैश लिखना है मेरे को। सब लोग लिखे हैं बैलेंस शीट डन। बैलेंस शीट डन लिख दो, आगे नहीं बढ़ूं मैं। बैलेंस शीट डन लिखे बिना आगे नहीं बढ़ना। सबको लिखना है बैलेंस शीट डन, हर एक जन को लिखना है। हाँ, कोई भी खाली हाथ कटे हुए नहीं लिखेंगे, वो लोग मेरे को आवाज से बोलेंगे हाथ कटे हुए नहीं लिख सकते, दूसरे सारे बोलेंगे मेरे को लिख के। क्या लिख दिया रे ये लोग ने? बैलेंस शीट डन लिख दिया। अच्छा, बैलेंस शीट डन हो गया। चलो रिवैल्यूएशन पे जाते हैं। रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है 7,000 पे, तो मैं लाल से करूं एड अप्रिसिएशन 1,000 रुपया 7,000, और इसका आइडिया लेस आरडीडी कितना रुपया 200, ये हो गया 4,800। एप्रिसिएशन आएगी इधर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 रुपया टू आरडीडी 200 रुपया। रिवैल्यूएशन के दो एडजस्टमेंट हो गए, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन का, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन का। तो सर फिर क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को कर देंगे बंद, निकालेंगे प्रॉफिट, और देंगे किसको सर? वो देंगे विलास, मंगल और गुरु को। सर वो कौन से रेशो में देंगे? वो देंगे 2:1:1 में। सर उसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे। सर अभी हम लोग को क्या लिखना है? चैट बॉक्स में रिवैल्यूएशन डन लिखना है आपको। हाँ, मेरे को हर एक स्टेप पे बताते रहना है कि हमारा हो गया। हर स्टेप पे बताना पड़ेगा भाई। बता दिया। उसके बाद आएगी मेरी गुडविल एडजस्टमेंट। उसके बाद आएगी गुडविल एडजस्टमेंट। वर्किंग करते हैं। वर्किंग का स्पेस बराबर यूज करना। हाँ, वर्किंग लिखा है ना, वर्किंग में 1 में क्या करना, तुम एक छोटा सा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बना के रख दो 4 लाइन का। ठीक है, एग्जैक्ट 4 लाइन का बना के रखना टी फॉर्म में। उसके बाद वर्किंग 2 में क्या करना? गुडविल एडजस्टमेंट। और सबसे पहले गुडविल एडजस्टमेंट में ए पार्ट क्या है? वैल्यूएशन।
सर कैसे वैल्यू होएगा वो एवरेज प्रॉफिट? चार साल का एवरेज प्रॉफिट है, 4 साल का, 3 इयर्स का परचेज है इंटू 3, ये तुम्हारा टोटल वैल्यूएशन होगा। सर ये कैसे आएगा? 15 13 28, 28 और 12 40, 30,000। और इसमें गुरु का शेयर कितना है सर? $7,500। हो गया गुडविल का 7,500 आया सबका? हाँ या ना बोलो, मुंह जुबानी बोल दो। हाँ सर। हाँ ठीक, सर। अब मैं दे रहा हूँ किसको गुडविल, देख लो। बाय गुडविल किसको दे रहा हूँ? गुरु को दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 7.5। और इसको राइट ऑफ भी करना है। बाय गुडविल इज रेजिंग गुडविल टू पार्टनर, पार्टनर को क्रेडिट देना, रेज बोलते हैं इसको। अरे बच्चा रेज बोलते हैं, ये रेज है। बाय गुडविल इसको दे दिया, अब राइट ऑफ हो रहा है। 2:1 में राइट ऑफ होगा। उनका गेन रेशियो सेम एज ओल्ड है, तो 2:1 में मतलब दिस इज राइट ऑफ एंट्री। अरे कलर अलग हो गया, कलर अलग हो गया। ये राइट ऑफ एंट्री, गुडविल का राइट ऑफ एंट्री 7,500। अब मेरे को ना कोई अपना अच्छा बच्चा जो है वो स्टेप देख के बताएगा कि गुडविल के बाद क्या स्टेप लिखा हुआ है, क्योंकि अपन स्टेप नहीं तोड़ते कभी भी, प्रॉब्लम कैसा भी हो। Profit up to the date of death. प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, राइट। तीन महीना, 3 months। His share of goodwill हो गया। The deceased partner share of profit up to the date of his death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। Average profit of last 2 years। सर लास्ट 2 years का प्रॉफिट है 7,000 और 5,000, उसी का एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6,000। और उसमें किसका शेयर निकालू मैं? गुरु's share for 3 months। 6,000 is annual profit which we calculated on the basis of average of last 2 years। It is annual profit, 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 6,000 into 3/12 will give you 3 months profit into 1/4 will give you guru's share। पहले एनुअल प्रॉफिट को 3 महीने के प्रॉफिट पे लेके आओ और उसके बाद गुरु का शेयर निकालो, अमाउंट बताना पड़ेगा मेरे को। What is the amount you are getting? $375।
वेरी गुड, 375 इज करेक्ट। क्या तुम्हारा वर्किंग पूरा हो गया भैया? सर वर्किंग नोट 3 वापस समझाओगे एक बार? वापस समझा रहा हूं मैं। गुरु ये साल में 3 महीना जिंदा है, उसको 3 महीने का प्रॉफिट देना है। ये साल का प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करना है, पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। मेरे पिछले 2 साल का प्रॉफिट 7,000 और 5,000 है, उसका एवरेज लेने बोला मेरे को। How to find out the profit which is to be given to Guru on the basis of the last 2 years average profit? 7,000 और 5,000 को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो तेरे को एक एनुअल प्रॉफिट आया 6,000। दिस इज 12 मंथ्स प्रॉफिट। 7 + 5 divided by 2. On this basis you have to give Guru's share. This is firm's profit for 1 year. 6,000 into 3 by 12 will give you firm's profit for 3 months, and when you multiply with 1 by 4, then you will get Guru's profit for 3 months. 6,000 into 3 by 12 इसलिए किया so that you get 3 months profit, and into 1 by 4 इसलिए किया so that you get Guru's 3 months profit. बेटा हाँ या ना बोलना मेरे को, बाकी कुछ नहीं बोलना, हाँ या ना, समझ में आया तो हाँ बोलना। हाँ। अब इसको देना है मेरे को एंट्री से, इसको एंट्री बार के देना है। क्रेडिट किसको देना है? बाय पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट देना है गुरु को 375 का, और यहां पे आएगा टू गुरुज कैपिटल 375। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देना था वो पीएनएल सस्पेंस से दे दिया मैंने। नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है प्रॉफिट पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड वहां से होता है। अभी पीएनएल सस्पेंस यूज कर रहा हूं, डमी अकाउंट यूज कर रहा हूं, क्योंकि कोई पीएनएल अकाउंट बनाने नहीं बैठता मरे हुए दिन पर। इसके बाद मैं लिखता हूं एनी अदर डेबिट और क्रेडिट, अपने पॉइंट वाइज स्टेप वाइज। कुछ लोगों को स्टेप से कोई मतलब नहीं, वो लोग को कैसे रॉन करना है पता रहता है। अब राइट करने के लिए स्टेप फॉलो करना पड़ता है, रॉन के लिए स्टेप फॉलो नहीं करना, मनमर्जी से करते समय। राइट करने के लिए स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद वाला स्टेप है एनी अदर डेबिट और क्रेडिट। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कुछ है क्या सम के अंदर? देख के पढ़ के बताना मेरे को है क्या है, बोलो ना। है बोला एकदम, मेरे बच्चे एकदम दुल्हन की इंटरेस्ट तरह ऑन बात करते हैं। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्रॉइंग से, और ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी तो दिया है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय 1,000 रुपीज ड्रॉइंग्स? क्या उसने विड्रॉ किया है पैसा? हाँ। विड्रॉ करते हो तो फॉर्म में से क्या चला जाता है? पैसा विड्रॉ करते हो तो फॉर्म से क्या जाएगा? पैसा। ओ ब्रिलियंट। फर्म से विड्रॉ करते तो फर्म से पैसा जाएगा, 1,000 रुपया चला गया तो फर्म से पैसा जाएगा, तो ये 1,000 रुपए का इधर भी जो एंट्री आएगी बाय, ये 6,000 का अमाउंट तो 31 मार्च का है, और ये 3 महीने में 1,000 रुपया विड्रॉवल हो गया। यस, कैश चला गया 1,000 रुपया। किसने लिया? गुरु ने लिया, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, ड्रॉइंग्स हो गया। एनी अदर डेबिट क्रेडिट पेंडिंग, एनी अदर डेबिट क्रेडिट, इसके अंदर सब कुछ देना है मेरे को। और कुछ बाकी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसको चार्ज होएगा भैया? किसको चार्ज होएगा? किसने विड्रॉवल किया है? गुरु। गुरु। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसको चार्ज होएगा 100 रुपीज, और ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आता था, पीएनएल अकाउंट के बदले आएगा इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 100 रुपये। अगर तुमको याद है, तुम जब फाइनल अकाउंट्स करते थे बहुत सारा सम्स किया तुमने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल के डेबिट में जाता था। प्रॉफिट अपन पीएनएल डेबिट से ट्रांसफर करते थे, पार्टनर्स को ऐड करते थे कैपिटल में। सब हो गया, सारा चीज हो गया। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालते। 375 275। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसको डाल दिया मैंने
एसेट साइड पे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट साइड। सही करने वाले सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब याद रखते हैं। गलत करने वालों को फिक्र नहीं होती, कुछ भी कर सकते हो लोग, अपने मन मर्जी से चलते हैं। चलो अब टोटल मारो, मारो गुरु का क्रेडिट टोटल मारो और वो अमाउंट दिखाओ जो एग्जीक्यूटर में जाएगा। टोटल मारो, ये एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट है। हो गया ये, अब तो लास्ट पार्ट आ गया। गुरु को जो देना था गुरु के एग्जीक्यूटिव्स में ट्रांसफर कर दिया। चलो ये बैलेंस यहाँ पे डाल दो, और बैलेंस शीट का टैली टोटल बताना मेरे को सारा डाल के, बैलेंस शीट का टैली टोटल बताना। Sir, cash transfer. सारा बन करके बैलेंस शीट में डाल दो। $20,070. 20,075। जिनका हो गया वो लोग बोलेंगे मेरे को डन, जिनका नहीं हुआ कंप्लीट करके बोलेंगे डन। सब बैंक सब पूरा दिखाओ ना। पूरा सॉल्यूशन बताओ। यस।
और जिनका हो गया वो लोग एक और चीज करेंगे, खुद पे एक एहसान करेंगे, सेकंड सम पढ़ के तैयार रखेंगे, तैयार रखना, सेकंड सम पढ़ के तैयार रखना। ये सिंगल डॉलर, वो सिंगल अकाउंट वाला सम है, ये सिंगल अकाउंट वाला सम है, ये सिंगल अकाउंट वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे ये लोग। क्या बनाने बोला यार ये लोग ने? Rajendra's capital. राजेंद्र कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हैव यू रेड? मैंने रीड नहीं किया, हैव यू रेड? मेरे को ये बताओ, बैलेंस शीट में कुछ है राजेंद्र को देने जैसा? कैपिटल बैलेंस है? अरे बोलो ना, ऐसे मत करो। है बैलेंस शीट में कुछ है राजेंद्र को sir. देने जैसा? क्या है, क्या है बोलो ना, क्या है बोलो ना। 12,000 से capital है अच्छा, और जनरल रिजर्व भी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राजेंद्र कैपिटल 12,000। गुड, और कुछ है? जनरल रिजर्व है? हाँ, जनरल रिजर्व है बाय जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व कितना है? 16,000 है। ये 16,000 क्या राजेंद्र का है? क्या ये पूरा नहीं। राजेंद्र का है? नहीं, नहीं, तो राजेंद्र का कितना है? 4/16। उसका रेशियो देखो, 7:5:4, दैट इज 4/16। सम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सम का सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, पर स्टेप चेंज नहीं हुआ। मैं स्टेप में यही फॉलो करने वाला हूं, बैलेंस शीट ट्रांसफर, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, पास्ट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट इफेक्ट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, फिर एनी अदर डेबिट और क्रेडिट। तो मैंने अपने रेलेवेंट सॉल्यूशन के अंदर जो जा सकता है बैलेंस शीट ट्रांसफर में से वो डाल दिया। मेरे पास सिर्फ राजेंद्र कैपिटल है। राजेंद्र कैपिटल में क्या जाना चाहिए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस, और कुछ नहीं जाना चाहिए। राजेंद्र कैपिटल में क्या शीतल अंजलि का कैपिटल जाएगा? नहीं जाएगा। तो आई एम कीपिंग द सेम स्टेप्स, बट ओनली whatever format I have उसके अंदर जो जाएगा वही लिखने का। Are we preparing balance sheet? No. Are we preparing any other partner's capital account? No. Are we preparing revaluation if required? Yes. Only if required, only if working is required, then we'll do this. What is your first step? जल्दी बोलना मेरे को यार, fast. I'm sorry to scream before you all, but you all are inactive elements of the earth. आवाज नहीं आती तुम्हारी, जल्दी से बोलना। Do you have, what is your first step? बैलेंस शीट खाली। सारे लोग बोलो रे, तुम्हारा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आता, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। Transfer the balance sheet Transfer the item. balance दम sheet से item. आवाज निकालना पहले। हाँ, दुनिया में कुछ करना है तो पहले आवाज ही बोलो। फर्स्ट स्टेप बोलो जल्दी। Distribution of अरे फर्स्ट transfer of balance sheet. दूसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा स्टेप बोलो क्या है? Revaluation adjustment. Valuation adjustment. तुम्हारा ये फॉर्मेट निकाला तुमने? हाँ हाँ, sir. हाँ सर। तुम्हारा ये फॉर्मेट निकाला, उस पे लिखा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म राजेंद्र कैपिटल अकाउंट लिखा तुमने? Yes sir. हाँ सर। यस। बाय बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, बाय जनरल रिजर्व लिखो। उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं। अभी मेरे को सिर्फ राजेंद्र से लेना देना है।
अब दूसरे पार्टनर से लेना देना नहीं, राजेंद्र को जो भी देना है क्रेडिट, जो भी डेबिट देना है वो करना है मेरे को, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्किंग बनाऊंगा मैं। They have asked only one account, single account. What is your third step? Revaluation Valuation, adjustment. profit loss. Revaluation, चलो revaluation करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, मेरा सबसे पहला वर्किंग रिवैल्यूएशन। इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और राजेंद्र का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे बाद में। टी फॉर्म में मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला रिवैल्यूएशन फर्नीचर में, फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग रिवैल्यू 16700 फर्नीचर का। व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द बैलेंस शीट? देखो ना, 17,000. मैं बोलता हूँ 300 रुपए का लॉस हो गया, फर्नीचर का वैल्यू डाउन हो गया, मशीनरी का वैल्यू 1800 लॉस हो गया, क्योंकि 16200 हो गया 18000 से। पर बिल्डिंग में देयर इज अ एप्रिसिएशन, देयर इज एन एप्रिसिएशन। $14,100। तुम्हारे टेस्ट खराब जाने के रीजन है कि तुम जब भी सम चल रहा है तभी न बोलते हो न समझने की ट्राई करते हो, और अगर नहीं समझा तो पूछते भी नहीं हो। अभी मालूम पड़ा ये तीनों एलिमेंट पता चला या नहीं? देखो जल्दी मेरे को हाँ या ना बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, अगर मुंह में पान दबाया है तो चैट बॉक्स में बोलो, यस और नो बोलो। हैव यू अंडरस्टूड फर्नीचर मशीनरी एंड बिल्डिंग हियर? I am just doing revaluation का part, whatever is relevant for this sum. I am not preparing balance sheet. I am not preparing any other account. I want only Rajendra's capital. Is there any other revaluation adjustment? Just check. Is there any revaluation adjustment left? No. No, no, no. What's the now? Now it's a time to close revaluation. Get the Rajendra's profit. 14,100. 14,100 उसमें से चला गया 2,100, 12,000 का प्रॉफिट। और इस 12,000 के प्रॉफिट में मेरे को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? राजेंद्र शेयर 12,000 into what is Rajendra share? 4/60. 3,000. When I'm preparing Rajendra's capital account, I want to know what are the credits to be given. Revaluation profit is one of the credits. Revaluation adjustment भी हो गया, revaluation profit loss भी हो गया। क्या स्टेप करते हैं इसके बाद में यार? What is the next step to be done after this? Goodwill. Goodwill गुडविल adjustment. करते हैं, गुडविल करते हैं। चलो गुडविल के सेंटेंसेस देखते क्या है। Rajendra share of goodwill is to be valued from firm's goodwill, which was valued at 2 times the average profit of last 3 years. Profit for last 3 years 30, 25, 20,000. Working note number 2, goodwill adjustment. A valuation is equal to 30,000, 25,000, 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया 20,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कितना टाइम्स, कितना टाइम्स, अरे कितना टाइम्स बोलो जल्दी। 2 2 times. times. हाँ चल चल, अभी कितना आया बताना मेरे को। 50,000 आ गया देखना।
ये बराबर देखना, ये बराबर आया कि नहीं। हाँ, राजेंद्र को मैं गुडविल भी दूंगा अभी, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ भी दूंगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दूंगा, उसको सैलरी भी दूंगा, और ड्रॉइंग्स अगर है तो वो डेबिट कर दूंगा। गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, वैल्यूएशन हुआ, 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाला, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 टाइम्स फर्म्स गुडविल है। ये जो निकाला पहले फर्म्स गुडविल है, और उसमें राजेंद्र का शेयर आया। राजेंद्र का शेयर कितना आया? 50,000 इंटू 4/60। सर क्यों ओनली राजेंद्र? अब मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा जिंदगी राजेंद्र है, राजेंद्र जिंदगी है मेरा, पूरा राजेंद्र का कैपिटल ही बना रहा है। $12,500। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बोलो भाई। वर्किंग नोट नंबर 3 किसका करूं? किसका क्या स्टेप है? बोलो जल्दी। Profit. His profit up to the date of death is to be calculated on the basis of last year's profit। पिछले साल का प्रॉफिट 20,000 है। अच्छा, कितना महीना जिंदा था वो देखो, हाउ मेनी मंथ्स ही वाज अलाइव? 2. अरे क्या गिनते हो यार, कैसे तुम लोग? क्या 3 स्कूल months. कौन सा ये तुम्हारा? किसका, कौन सा स्कूल है ये? कितना महीना जिंदा था अप्रैल से जून 30 तक? 3 months. 3 मंथ्स ना बेटा। हाँ, साला पूरा फीस वेस्ट कर दिया 10 साल का। इधर देखो, बराबर देखो, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अमाउंट कितना, नहीं कितने महीना जिंदा था वो? 3 मंथ्स। बेस्ड ऑन विच ईयर्स प्रॉफिट? बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। सर लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है? दैट इज इक्वल टू 20,000। तो राजेंद्र शेयर, ये तो फॉर्म का प्रॉफिट है। राजेंद्र शेयर फॉर 3 मंथ्स कैसे आएगा सर? 20,000 इंटू 3/12, ये फॉर्म का प्रॉफिट है 20,000। 3 में 3/12 किया तो सफिशिएंट नहीं, और एक चीज करना है, 4/60। What is the amount you are getting? Please let me know what's the amount you are getting. What is the amount you are getting? 1,250. Yeah, very good. क्या बात है, 1250 बराबर है प्रॉफिट अप टू रेट ऑफ डेथ। मेरे को लास्ट टाइम में किसी ने पूछा था इसके बारे में, अभी मालूम पड़ा ये? हाँ सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, और आज ही साफ सफाई नहीं कर देना, तुम्हारे दिमाग में हार्पिक है, हार्पिक निकाल के रखो। इनहेरेंट साफ सफाई हो जाती है, पूरी क्लियर हो जाती है, पूरा क्लीन एकदम व्हाइट, एक छींटा नहीं रहता कंसेप्ट का। ऐसा नहीं करना, साफ सफाई नहीं करना, पूरा माथा खराब नहीं करना। We are not from cleaning department, we have to remember everything. Profit up to date of death। अच्छा, इसकी एंट्री मारने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है भाई? जल्दी बोलो। Suspense. P&L suspense account। मेरे बच्चे लोग कितने ऐसे अच्छे भी है, ऐसे अच्छे है, और 1-2 दिन याद रखते हैं सब चीज। वेरी गुड, 1250, वेरी गुड। अरे भाई तेरे को मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है अभी। एनी अदर डेबिट और क्रेडिट आ गया ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। सर कितना देना है वो? और सैलरी भी देनी है मेरे को, सैलरी भी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे परसेंटेज मारो, 12,000 इंटू 10% इंटू 3/12,
और सैलरी कितनी 800 इंटू 3, 3 महीना जिंदा था वो। सर ये कितना आ गया 2400 आ गया। सर ये कितना आया 300. इज इट 300। Yes. अब क्या उसको कोई चार्ज करना है क्या? वो देखो एनी अदर डेबिट या क्रेडिट लिखा है मैंने। ये डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, कोई चार्ज करना है उसको? ये अल्लाह क्या पूछ लिया यार, ये सुना क्या पूछ लिया ये तू? अरे कुछ डेबिट करना है क्या राजेंद्र कैपिटल को? Drawing. ड्राइंग्स। अल्लाह मेरे बच्चे लोग ऐसे अच्छे भी है। ड्राइंग्स 600 से कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं? कितने महीने से मल्टीप्लाई करूं बोलो ना 600। 3 3 से? क्यों 3 से? तेरा लकी नंबर है बेटा। क्यों 3? वो 3 महीना जिंदा था ना। अच्छा ऐसे तो अच्छे भी है बच्चे लोग, वेरी गुड वेरी गुड। 3 महीने जिंदा। You must have observed that I follow the same step as I do in the whole full-fledged sum. But the debit or credit is given to only that relevant account which is prepared. I did not change the step for that. I follow the same thing. सर ये 600 PM मतलब क्या? हर महीने वो 600 रुपया विड्रॉ किया और फिर बाद में 3 महीना होने के बाद भगवान ने उसको विड्रॉ किया। ये समझे क्या? मालूम पड़ा क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझा। 600 विड्रॉ कर रहा था, वो विड्रॉ कर रहा था, मजा ले रहा था, लाइफ का अच्छा सब चल रहा था सब कुछ। 30 जून को वो विड्रॉ हो गया, समझे बराबर? और कुछ बाकी है तो देख लो, वरना आत्मा भटकेगी राजेंद्र की, तेरे को सताएगी, तेरे को देखना। कुछ और बाकी है देना लेना? अच्छा किस में ट्रांसफर करते हैं ये अमाउंट? बैलेंस शीट। ये एग्जीक्यूटिव लोन बोल पहले। You have to transfer this amount to executors loan from their balance sheet. कंप्लीट लिखने वाले लोग चाहिए मेरे को, चैट बॉक्स में कंप्लीट लिखने वाले लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं, जिसका पूरा हो गया। सर पीएनएल सस्पेंस का अलग से वर्किंग में नहीं बताना। बेटा वर्किंग का जरूरत नहीं है, मतलब वो बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही मेरे को राजेंद्र कैपिटल चाहिए था ना, वो हो गया मेरा। मैं जरूरत के हिसाब से वर्किंग बनाऊंगा ना। जरूरत नहीं रहे तो रखने जरूरत नहीं है, मतलब वो यू डोंट हैव टू शो दैट वर्किंग। जितनी वर्किंग जरूरत थी मैंने वर्किंग जरूरत के हिसाब से बनाया, फॉर्मेलिटी के हिसाब से वर्किंग नहीं हो रहा है। आई रिक्वायर्ड रिवैल्यूएशन, यस आई डिड दैट। अच्छा इधर मेरे को पीएनएल सस्पेंस यहाँ पे वर्किंग लिखना, नंबर 3 लिखना पड़ेगा, ये पूछ रही थी क्या तू? मेरे को अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
सर एक बार स्क्रॉल नहीं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना। सर एग्जीक्यूटर्स का 33,650 आएगा ना? कितना आया अमाउंट? Yes, sir. 33,650 sir, same आया. सेम 30। आया। 650. ठीक है, 33,650 बराबर है। थर्ड वाला सम पढ़ना है, थर्ड वाला सम पढ़ो, खाली खाली पढ़ो और उसका एक्सप्लेनेशन सुनना पहले बराबर से। Which is the difficult part of third sum? So that I can show you that. Which is the difficult part of third sum? प्रोपोर्शनल रिजर्व्स अलग है ना? हाँ बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व्स बेटा अलग है। प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व तो जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट था वही है, उसमें कुछ नहीं है। 1 2 सर 3 एडजस्टमेंट 7। मैं एडजस्टमेंट 4 और 7 दोनों बताता हूँ, खाली 7 नहीं। फोर्थ में लिखा है हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स। मैं प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ की बात कर रहा हूं, एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पहले तो वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो लास्ट 3 साल का एवरेज? क्या आया, डिवाइड बाय 3 करते हैं, ये क्या आएगा? 18 18 36 50 to 500 upon 3। जी, 50 to 500 डिवाइडेड बाय 3, 1 7 500। ये आ गया एवरेज ऑफ। उसने बोला है कि ये प्रॉफिट को मत लेना, प्लस 20% करना, तो इसका 20% ऐड किया, 1750 प्लस 1750 21,000। नहीं 3500 आएगा ना? अरे मैं टोटल बताई। तो क्या होगा सर ये? 21,000। 21,000 हो गया, राइट। अब इसके बेसिस पे तुमको लिखना है वो बाबी शेयर। कैसे निकालेंगे? ये एनुअल प्रॉफिट है 21,000 को, उसको मल्टीप्लाई, पहले मंथ से मल्टीप्लाई करना 3/12 और फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना। बाबी किधर है? बाबी लास्ट है, 1/4। 21,000 divided by 4, is it 50420? नहीं 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 5 2
5250 और डिवाइड बाय 4 करो। 5250 डिवाइड बाय 4 करो। अप्रॉक्स 1313। सर इसमें अलग क्या था, ये था सर, ये क्यों किया? प्लस 20% लिखा है इसलिए किया। दिस इज प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। इसका इफेक्ट कैसे आएगा? पीएनएल सस्पेंस टू, क्या नाम है? बाबीज कैपिटल। हैव यू रिटन दिस? Yes. अब मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला। जो लास्ट वाला क्या है मालूम है? लास्ट वाला कुछ नहीं, उसमें इजी है। 7th वाला एडजस्टमेंट इजी है। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। फर्म ये रिसीव्स, वाले में अलग से 20% ऐड किया, वही था ना? बस वही था वो। फर्म रिसीव्स ₹20,000 फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट and this amount is used for payment of Bobby's dues। बेटा जब भी बाबी का अकाउंट बनाएंगे तुम लोग, बाबी का अकाउंट, तो यहाँ पर ना टू कैश बैंक करके अमाउंट आएगा 20,000 का, और जो डिफरेंस इसके बाद बचेगा वो जाएगा एग्जीक्यूटर्स में। In previous two sums, we had transferred everything to executors loan, but here they are paying some amount and remaining amount is transferred to executors loan। Here they are using 20,000 का जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट बेच के आया फॉर पेमेंट ऑफ बाबीज ड्यू, और जो उसके बाद भी बचा हुआ है वो एग्जीक्यूटर्स लोन में जाएगा। ये मेरे को अंडरस्टूड या नहीं बोलना है यार तुम लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, ये मेरे को बताना है तुमको। अंडरस्टूड सर। बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 यू आर राइटिंग, योर राइटिंग होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, सर 1 मिनट ऊपर करो ना वो फर्स्ट वर्किंग नोट पे। सर मेरे को ये नहीं समझा। कौन सा वाला बेटा? ये जो अभी आपने बताया, ये बेटा बाबी का कैपिटल, सपोज तू बाबी है और मर गई सपोज, तो तेरे एग्जीक्यूटिव्स को हम लोग 20,000 अभी पे कर रहे हैं, और बाकी जो भी बचेगा वो अपन लोन में ट्रांसफर करेंगे। पिछले 2 सम में पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर हुआ था, इसमें पार्टली पेमेंट हो रहा है और पार्टली लोन में ट्रांसफर हो रहा है। अभी समझी? मतलब अभी वो जो हम लोग ने कैश बैंक, अभी वो 20,000 है, तो फिर एग्जीक्यूटिव लोन में कितना, मतलब पैसे कैसे आएगा? अच्छा एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड। ये पूरा टोटल होएगा, ये टोटल में से यहाँ पे जो भी है वो माइनस होएगा और फिर ये बचेगा। जब तू बाबी का अच्छा अभी समझी। बाबी का कैपिटल पूरा बनाएगी, जो भी डिफरेंस आएगा वो एग्जीक्यूटिव्स लोन में जाएगा। मालूम हाँ पड़ा? सही में पता चला? हाँ हाँ। अब ये हाँ वाला हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको होमवर्क में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4, 5th को टच नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तुम्हारा होमवर्क है, 5th को टच नहीं करना।
आया समझ में बात? बस इधर मैं तुम्हारा ये सेशन एंड कर रहा हूँ, यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। 3 and 4 you are doing as homework. सर थोड़ा ऊपर करो ना। सर ऊपर करो ना एक बार। ऊपर करो ये। या सेशन एंड करता हूँ, तुम लिख के ये लिख सकते हो अभी, यू कैन राइट इट डाउन।